एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आपकी स्वागत करती हूं एपेक्स इंडिया न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। Now the news in detail. ईरानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मेघालय सरकार ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में खासकर दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा का विस्तार करना है। ये घोषणा 1 अप्रैल 2026 को राज्य सरकार और स्टारलिंक इंडिया के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर के बाद की गई। इस पहल का लक्ष्य क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आने वाली कनेक्टिविटी चुनौतियों को दूर करने के लिए सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं को लागू करना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और स्पेस एक्स के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रमुख उपस्थित लोगों में स्पेस एक्स की प्रेसिडेंट और COO गिन शॉटवेल तथा स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर शामिल थीं। So we just signed an MOU with Starlink, and the objective is to use the Starlink technology, which is a satellite-based internet services, to give connectivity to the remotest areas of our state. And as you are all aware that there are many areas, many blocks, many hospitals, schools, police stations, and other institutions and individuals that require connectivity, and sometimes it's not available. So through the SpaceX and the Starlink technology, without any optical fibers also, they will get directly connected through the satellite and they will receive high-speed internet services. Now this is a process, of course. It's just the beginning. It will take some time for it to fructify. Though we have signed an MOU, Government of India has a very important role to play. And obviously when the discussions and negotiations at the central level are complete, then Meghalaya is there to be at the front end to at least implement this in the northeast region as one of the first few states to do it. And therefore this is a great beginning, and I am very confident that this particular project will help us in almost every sector, whether it is health, education, social sectors, or even administration, and even for our entrepreneurs and even for policing. So it's a great step, and we really look forward to it. And I would like to thank the President and COO, Ms. Gwyn, who had joined us online. She is the President and COO of SpaceX, and the Vice President of SpaceX, Ms. Lauren, as well as the Starlink India head, and others were there. So we're very happy with this MOU, and we hope that we'll be able to implement this at the earliest. It's a internet connectivity based on satellite. So obviously the areas which don't have connectivity, this will allow us to have connectivity to those remote locations where optical fibers or towers of different telecom companies are not there. This will particularly help in ensuring that the connectivity reaches to those people. Thank you. मिशन 1000 डेज मेघालय में लॉन्च। बच्चों के पोषण और मैटरनल हेल्थ को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए चीफ मिनिस्टर कॉनरैड के संगमा ने ट्यूसडे को मिशन 1000 डेज लॉन्च किया। 127 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के पहले 2 साल तक के क्रिटिकल पीरियड पर फोकस करता है। इसका उद्देश्य स्टंटिंग, मैलन्यूट्रिशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर की कमी को दूर करना है, खासकर रूरल एरियाज में। This is the roadmap that we have laid down for Meghalaya.
Of course, it's that were being given, being made and supported, which allowed children to then clear the exams. So like that, we realize that in maternal mortality also, it's not just about the institutional delivery, but it is really about the access, when the mother needs the access and the support, that system that is required, whether financially, whether medically, whether nutritionally. These things weren't available at that point in time. And the high-risk mothers were the mothers which we needed to focus on. And when we started to analyze and dissect this entire problem, slowly and steadily, it took us about 3 years, we started to realize that we need to take specific interventions, tailor-made interventions, to be able to cut the number of deaths during delivery that the state was seeing. And of course, at a larger scale, we realized that we need to make women economically more active, empower them economically. It was our overall society aspect which we realized led to the fact that the mothers were, getting pregnant very, very frequently. There were some mothers who were 23 years old, giving birth to their 5th child, to the 6th child. And obviously that leads to a lot of trauma for the mother. So these kind of things helped us to analyze the situation, and we managed to today, almost cut the maternal mortality rate by almost 50%. I'm just sharing this with you because it's something very close to my heart. And I'm very happy to see that we are actually able to make a difference in people's lives today and save lives today. And I hope that there will be a day that will come where not a single mother will have to lose her life while giving or bringing life into this world. That's really what our motto and our target is, and I'm sure with support from everybody, we will be able to achieve that. Next, I would like to invite Sister Felicita Sinkley from St. Mary's Health Center, Mansang. I request So the Mother and Baby Kit is an initiative under the Honorable Chief Minister. It will be given to Dennis R. Lingra, Vambashnong Nonga, Reuter Robson L. Maunai, Vambashnong Maushinrut, Bitista Rani, Vambashnong Mairang Mission, Dipsyang Mabanyang, Vambashnong Moyong Rim, and Kwabor Linja, Vambashnong, Lat Maulong, Lat Lingka. Thank you. So we have one more. Thank you. So we have one more. Request all the headmen to kindly stand so we can have a group photograph also. What's the date? एक महत्वपूर्ण विकास में रूसी चेचन युद्ध इकाइयों ने आधिकारिक तौर पर ईरान को सूचित किया है कि वे अमेरिकी जमीनी हमला होने की स्थिति में ईरानी बलों के साथ लड़ने के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम बढ़ते क्षेत्रीय गठबंधनों को दर्शाता है। Iranian state media is now claiming that combat units from Russia's Chechen Republic have declared themselves ready to deploy to Iran if the United States launches a ground invasion. According to Press TV, these forces are loyal to Chechen leader Ramzan Kadyrov and have told Tehran they will fight alongside the Iranian armed forces if US troops move beyond air and missile strikes onto Iranian soil.
The reports describe the ongoing US-Israeli war against Iran as a religious war and say the Chechen side is framing any direct intervention as a jihad, a battle of good versus evil in defense of the Islamic Republic. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपने बलों को वापस लेगा। उन्होंने कहा, हम बहुत जल्द ईरान छोड़ देंगे। 2 से 3 हफ्तों में हमारा काम पूरा हो जाएगा। जैसे ही हम चले जाएंगे, गैस की कीमतें घटेंगी और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज स्टॉक की कीमतें बढ़ गई थीं। And we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know 2 things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। इस बीच रिपोर्टों के अनुसार फ्रांस ने अमेरिका के उन विमानों को रोक दिया है जो इजरायल को सैन्य आपूर्ति ले जा रहे थे। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े मध्य पूर्व संघर्ष हमारा नहीं है। ये बदलती स्थिति वैश्विक ध्यान आकर्षित करती रहती है क्योंकि देश बढ़ते मध्य पूर्व संघर्ष में अपनी भागीदारी पर विचार कर रहे हैं। ईरानी सूत्रों का कहना है कि देश एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें चल रहे संघर्ष के बाद परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने की योजनाओं की रिपोर्टें हैं, जो वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की महत्वाकांक्षा को संकेत देती है। Can accommodate all types of fighter jets and bombers, in addition to drones, the official news agency IRNA said, releasing images and videos from inside the base. The exact location of the base was not revealed, but state media said it was at the depth of hundreds of meters under the mountains and capable of withstanding bombs by strategic US bombers. In May last year, Iran's army revealed an Air Force base for drones under the Zagros mountain range in the west of the country. The latest unveiling comes the day before Iran marks Air Force Day, part of the build-up to the 44th anniversary of the 1979 Islamic Revolution. OGAB 44 is one of numerous tactical underground air bases for the Army's Air Force built in different areas of the country in recent years. It can prepare fighter jets to counter possible offenses, such as those practiced by the US and Israel in their recent military drill, according to state media. Iran has mostly Russian MiG and Sukhoi fighter jets that date back to the Soviet era, as well as some Chinese aircraft, including the F-7. Some American F-4 and F-5 fighter jets dating back to before the revolution are also part of its fleet. ईरान ने तेज हमलों की दी धमकी। ईरान के मिलिट्री स्पोक्समैन इब्राहिम जुल्फिकर ने कहा है कि यूएस और इजराइल के टारगेट्स पर हमले और तेज किए जाएंगे। उन्होंने कहा, नो नेगोशिएशन, नो रिट्रीट। नो रिट्रीट, दिस हैज ओनली जस्ट बिगन। आमी तلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز ईरान ने यूएस ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयारी जताई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान किसी भी यूएस ग्राउंड इन्वेजन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। We are waiting for them. مثل هذه التهديدات. فيما يتعلق بهذا السؤال فقد أجبت عليه سابقا وقلت إننا ننتظرهم ولا أعتقد أنهم يملكون الجرأة للقيام بذلك لأنهم سيتكبدون خسائر كبيرة جدا. نحن بالطبع لا نسعى إلى ذلك ولم نكن نريد هذه الحرب ولم نبدأها، لكننا دافعنا عن أنفسنا وكان دفاعا قويا. الخسائر التي لحقت بمنشآتهم ومعداتهم وبراداراتهم في المنطقة وبطائراتهم وخاصة الطائرات الاستراتيجية. نحن نعرف جيدا كيف ندافع عن أنفسنا، وفي الحرب البرية نحن أكثر خبرة وتجهيزا. نحن مستعدون تماما لمواجهة أي تهديد أو هجوم بري على بلادنا ونأمل ألا يرتكبوا مثل هذا الخطأ. नियाम प्रोजेक्ट पर मेघालय सरकार ने अफवाहों को बताया गलत।
मेघालय टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर चल रही उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि प्रपोज्ड ताज उमियाम रिजॉर्ट एंड स्पा से उमियाम लेक और लुंगपोंडिंग आइलैंड को नुकसान होगा। ऑफिशियल्स ने इन चिंताओं को गलत और मिसलीडिंग बताया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट माना जाना चाहिए। जस्टिसेस मनोज मिश्रा और मनमोहन की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए प्रभावित कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने का आदेश दिया है। ईरान का अमेरिकन कंपनीज के एम्प्लॉइज को वार्निंग। ईरान ने मिडिल ईस्ट में काम कर रहे अमेरिकन कंपनीज के एम्प्लॉइज को तुरंत रीजन छोड़ने की सलाह दी है। ये वार्निंग 1 अप्रैल को होने वाली एक संभावित ऑपरेशन से पहले दी गई है जिससे टेंशन्स बढ़ गए हैं। Heightened tensions about escalating tensions. Several global corporations were named in the warning. FCRA अमेंडमेंट पर क्रिश्चियन समुदाय में चिंता। केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के प्रेसिडेंट कार्डिनल बसीलियस क्लीमिस ने कहा है कि FCRA अमेंडमेंट बिल से क्रिश्चियन समुदाय में चिंता और दबाव का माहौल है। Caused anxiety and pressure among Christian communities. Which gives us certain anxieties. The Christian communities have experienced a sort of anxiety and little pressure on us as we discharge our duties as missionaries, as well as those who have been building up this nation with our commitment and communion. The new bill with its specific amendments have brought certain anxieties, especially as यूएस, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज। यूएस और इजराइल का ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन अब दूसरे महीने में पहुंच गया है। एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, जबकि ईरान भी मिसाइल अटैक से जवाब दे रहा है। ईरान और लेबनान में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बेघर हो गए हैं। have crossed 1,900 in Iran and 1,200 in Lebanon, with widespread displacement reported. कश्मीर एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। ऑपरेशन आराहमा के तहत कश्मीर के गंदरबल में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। क्षेत्र में सिक्योरिटी ऑपरेशंस जारी हैं। Security operations in the region remain ongoing. देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या, 4 गिरफ्तार। देहरादून में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये विवाद कार ओवरटेक को लेकर हुआ था। सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। The accused are residents of Delhi. प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की वो उस समय वहाँ घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और उसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के
पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो बगदाद में अमेरिकन जर्नलिस्ट का अपहरण। अमेरिकन जर्नलिस्ट शेली किटलसन को बगदाद, इराक में कुछ अननोन आर्म्ड लोगों ने किडनैप कर लिया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। Footage of the abduction has surfaced, raising concerns about journalist safety. डोनेशन पर विवादित बयान से बवाल। इंडियन आर्मी को डोनेशन न देने को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है, जिससे सोशल मीडिया पर तेजी से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बयान ने लोगों में नाराजगी पैदा की है। जम्मू कश्मीर में तमाम लोग हैं, पैसा, रुपया, सोना चांदी सब ईरान भेज रहे हैं, दान कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो ठीक है ना। तमाम लोग कहने कि यही दान अपने देश में सैनिकों के लिए क्यों नहीं होता है, यही दान अपने देश में हमला होता है, सैनिकों के लिए क्यों करेंगे। हम जो है हक के खिलाफ है, हक के खिलाफ नहीं जाते। जो लोग शराबी, कबाबी, शबाब, आजकल का यही तो रोल चल रहा है ना। सैनिक थोड़ी ना ये सब करते हैं। सैनिक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। सैनिकों, देश के सैनिक जो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, यहाँ हमारे शिया के सैनिकों के लिए नहीं हो रहा है ये कुछ, जो कुछ हो रहा है यहाँ पे हो रहा है ईरान के लिए। ईरान के लिए हो रहा है, जन्नतुल बकी के लिए हो रही है ये सारी बातें। तो सैनिक नहीं इम्पोर्टेंट है इस देश। इस टाइम सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारे रहबर इम्पोर्टेंट है और इस टाइम हम जो है उनके साथ खड़े हुए हैं बस। बस्तर में नक्सल दर में कमी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि बस्तर रीजन में नक्सल दर अब कम हो रहा है। इससे बिजनेस और रोजगार के नए मौके खुलने की उम्मीद है। Expected to boost business opportunities and employment in the area. जो सशस्त्र नक्सली थे पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं या न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम जगदलपुर से कहीं भी जाते थे तो हम हमारे जो परिचित हैं वो सीधा बोलते थे कि नक्सली आपके घर आते हैं क्या, या आप जो है नक्सलवाद के इलाके में रहते हैं तो डर निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। अब एक तरीके से वो पूरी बातें जो है बस्तर के लिए जो कही जाती थी समाप्त हो जाएंगी। सड़कों का जाल बिछ रहा है, कई व्यापारी हो गए और बहुत सारे जो व्यापार नया करना चाहते हैं, जिनको रोजगार देना है, वो उस इलाके तक पहुंच नहीं पाते थे नक्सलवादियों के डर से। वो अब सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सीधे पहुंच जाएंगी। जो बच्चे 4 दशक से शिक्षा से दूर थे वो शिक्षित होने की उसमें आ जाएंगे। शिक्षा दूत जो है उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक तरीके से जिन ग्रामीणों के मन में नक्सलवादियों को लेकर डर था, जो कुछ काम नहीं कर पाते थे या उनके बहकावे में आ जाते थे, वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। हाँ, युवा भी बंदूक छोड़ के रोजगार से जुड़ जाएंगे, जो एक प्रकार से महानगर कभी गए नहीं है युवा। जो सीधे कनेक्टिविटी नहीं थी, अब कनेक्टिविटी आसानी से पहुंच जाएगी। सड़कों का जाल बिछ रहा है, सुरक्षा उपलब्ध हो रही है कैंपों के माध्यम से। कई वीडियो फुटेज हमने ये देखे कि जैसे घायल रहते हैं ग्रामीण या फिर गर्भवती महिलाएं रहती है, कैंप में ही उनका इलाज संभव हो पा रहा है। तो इन सब चीजों को देख के जो रोजगार भटक गए थे युवा, वो अब मुख्य धारा में सीधे जुड़ जाएंगे और हथियार तो छोड़ दीजिए, अब तो नहीं उठाएंगे और रोजगार की तलाश में रहेंगे। तो सरकार उनके लिए रोजगार मुहैया करा रही है। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स का नया इनोवेशन। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने ड्राई लीव्स को कुकिंग फ्यूल में बदलने की टेक्निक डेवलप की है। ये इनोवेशन एलपीजी शॉर्टेज के दौरान काफी उपयोगी साबित हो सकता है। During LPG shortages amid global conflicts.
पीछे ने जान बुझ के गाना का फिल्म खराब कर रहा है लेकिन गिरा नीचे इसके अंदर पूरा पत्थर डस्ट स्टोन पेबल सारे निकल जाएंगे। दिस इज नोन एज थ्रेशर। थ्रेशर के बाद में इसमें डाला जाएगा। इसका काम है इसको फाइन ट्यून करना, पाउडर जैसे बनाना। That's all for today. Namaskar. Jai Hind. Apex News, India, Northeast.